ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तेरा धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तेरा शुक्र होवे, तेरी तारीफ होवे मेरे खुदावन, तेरा शुक्र होवे, धन्यवाद। हालेलुया पिता, तारीफ होवे, धन्यवाद जीसस। थैंक यू पिता परमेश्वर जी। हालेलुया। परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदे हां। परमेश्वर की हजूरी दे विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। सो आइए सब तो पहला अज दी आपां लाइव प्रार्थना नूं शुरू करन तो पहला प्रार्थना विच चलांगे। हालेलुया। रेहेतला बसखना बतरा रेखेने बशखना बतरा रेखेना बाबा सामना हतोरो कोशोको डाला लखंदरा रेखे रे रेहतोलो लखा सखना बेतेरे रेखे रे पे पिता स्वर्गीय पिता तेरा धन्नवाद तेरी पवित्र प्रेजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਲਹੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭੇਜੋ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਬਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇ। ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ, ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਬਬਲੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਰੋੜਾ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਆਰ ਕੇ ਗੁਪਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗੋਡ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੇਖੇ ਦੇ ਬੇਸਖਾ ਰਾਬਾਤਾ ਰੱਖੋ ਬੋ ਰੱਖੋ ਬਾਬਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ 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 ਅਦਭੁਤ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਉਨਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਹਿਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਲੋ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਹਿਤਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਕੂਰਾ ਸਕਾਰਾ ਬਾਬਾ ਰਿਬੇ ਨੇ ਮੇ ਸ਼ਖਾਨਾ ਬਾਤੋਰੋ ਰੋਕਨਾ ਕਾ ਬਾਬਾ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਮ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਸੀਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ
खुदा बहुत बहुत अद्भुत ने, अद्भुत काम करने की शक्ति रखते हैं मेरे अजीजों। हालेलुया। तो रेखे रे बेशक खाना भातरा रेखे ने बाबा। सो मैं खुदा की हजूरी दे विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ वैलकम करदी हाँ। तो अज का जोड़ा वचन है मेरे अजीजों, अज मैं तुहानूं दसना चाहती हाँ कि परमेश्वर अज तुहाडे जीवन दे विच अद्भुत अपनी सामर्थ और अद्भुत अज अभिषेक नूं लैके आउणगे। तो अज का जोड़ा वचन है तुहाडीआं जिंदगियां च काम करेगा। अजीजों, अज मैं तुहानूं दसना चाहती हाँ कि हर एक व्यक्ति जिहड़ा शिक्षा नूं लैना चाहुंदा है, सुधार दे नाल प्रीत रखता है। हिंदी दी बाइबल च इदां लिखिआ है, नीति वचन 12 ओदा एक वचन मैं तुहाडे लई पढ़ना चाहूँगी। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वे ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से वैर रखता है वह पशु के समान है। और पंजाबी दी बाइबल दे विच इदां लिखिआ, जो सुधार नाल प्रीत रखदा वो ज्ञान नाल प्रीत रखता है, पर जो ताड़ नूं बुरा जानदा है वो पशु दे वर्गा है। सुधार दे नाल प्रीत जिहड़ा रखदा है वो परमेश्वर दे कोलों बरकत लैंदा है। अज मैं तुहानूं दसना चाहुंदी मेरे अजीजों कि कई बारी साडे जीवन दे विच सानूं साडे वड्डे झिड़कदे ने किसी गल तो, सानूं सिखाउंदे ने कोई चीज़, ते जे असीं उन्हां दी झिड़क नूं स्वीकार कर लैंदे आ ईमानदारी नाल, ऑनेस्टी दे नाल, ते फिर असीं ब्लैस हुंदे आ, फिर असीं बरकत पाउने आ, फिर असीं खुदा दी हजूरी दे विच आशीष नूं प्राप्त करदे आ। पर एक जिहड़ा घमंडी व्यक्ति है वो ताड़ना तो नफरत करता है, वो पसंद नहीं करता। पर जिहड़ा हलीम व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, वो बड़ी खुशी दे नाल अपना सुधार जदों दा हुंदा, जदों ताड़ना हुंदी आ ते उहनूं एक्सैप्ट कर लैंदा। ते अज मैं दसना चाहुंदी हां, जिहड़ा बंदा अपने क्रिटिसिज्म नूं एक्सैप्ट करदा आ वो बंदा बहुत ब्लैस हुंदा। अज तुसीं देखोगे बहुत सारे दुनिया दे विच इदां दे लोग आ जिहड़े चाहुंदे ही नहीं कि उन्हां नूं कोई चीज़ सिखाई जाए, कि अगर तुसीं किसी नूं कुछ सिखाउण दी कोशिश करदे हो तो अग्गों तुहानूं 10 गल्लां सुणाएगा। या तुसीं अपनी पर्सनल लाइफ च देखोगे, तुसीं जदों भी किसी नूं भी जदों तुसीं कोशिश करोगे उन्हां नूं टीच करन दी, ते ओह कि अग्गों एक्सैप्ट नहीं करते, बिकॉज हर व्यक्ति जोड़ा है वो कहता कि मैं बहुत ज़्यादा लाइक समझदार हाँ, मेरे वर्गा समझदार कोई नहीं है। और लेकिन जोड़ा व्यक्ति ईमानदारी नाल, जोड़ा व्यक्ति ऑनेस्टली अपनी क्रिटिसिज्म मतलब कि जदों कोई व्यक्ति तुहानूं सुधारन दी इच्छा दे नाल तुहानूं क्रिटिसाइज करता है, बाइबल दे विच आपां पढ़िया, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है। शिक्षा क्या है? जब आपको सिखाया जाता है, आपको आपका सुधार करने के लिए जब आपको कोई टीचिंग दी जाती है, और यदि आप प्रीत करते हैं उससे, ईमानदारी से, हलीमी से, आपको कोई सिखा रहा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, यार मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ। आप 100 काम करते हो, 99% आप सही चल रहे हो, परंतु 1% आप छोटी सी कोई मिस्टेक कर रहे हो। और अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है तो वो आपकी 1% गलती को भी पकड़ेगा, वो आपको सिखाएगा, वो आपको समझाएगा। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो बाप यदि वो अपने बच्चे से प्यार करता है, अगर वो छीटी नहीं चलाता तो वो उसका दुश्मन है, वो प्यार नहीं करता उसको, वो दुश्मन है उसका। और यदि कोई आपका छीटी उठाता आपके खिलाफ, आपको वो टीच करता है, वो आपको समझाता है, ये सही नहीं है, ये गलत है, तुम यहाँ पे रॉन्ग चल रहे हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए था, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है, ना कि आपको बदले में 10 बातें उनको सुना देनी है। नहीं, आप कौन होते हो मुझे ऐसा बोलने वाले, आप कैसे बोल सकते हो मुझे ऐसा। अगर आप
उस आलोचना को, उस सुधार को आप प्रेम करते हो जो आपको ताड़ना दी जाती है, तो आप बहुत ब्लेस होंगे। आमीन। परंतु जो डांट से वैर रखता है, बाइबल क्या कहती है, वो पशु के जैसा है। आप पशु को जितना मर्जी मारो वो कभी नहीं समझेगा, क्योंकि वो पशु है, उसको पता नहीं है। अगर आपको कोई चीज सिखाई जाती है, आपको किसी बात के लिए डांटा जाता है, और अगर आप उससे वैर करते हो, तो आप एक घमंडी और एक व्यक्ति के समान है जिसका दिमाग घमंड से भरा हुआ है। जो अगर आप अपने सुधार के प्रति, अगर आपको कोई ताड़ रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, अगर उसके प्रति आप घमंड से आंखें निकालते हैं उसको आगे से, तो मैं एक बात बता दूं, आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप अगर समझदार हो तो आप उसको सीखोगे, आप समझोगे उस बात को कि उसने मुझे ताड़ा है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो भला होगा। मैं अपने जितने भी लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मैं चाहे उनको पढ़ूँ ना पढ़ूँ, जो मेरी प्रेज करते हैं, परंतु जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं मैं उनको ज़रूर रीड करती हूँ, बिकॉज वहाँ से कुछ ना कुछ हम गेन कर रहे हैं। अगर किसी ने आपको कुछ कहा है तो इसके पीछे आप ये मत सोचो कि एक घमंड से भर जाओ कि या मैं तो राजा हूँ, मैं तो किंग हूँ, मुझे कौन बोल सकता है, इस दुनिया में मुझे कौन बोलने वाला आ गया, ये मत सोचो। एक बच्चे जैसे बनो। आप पूरी जिंदगी, आप बूढ़े भी हो जाओ, खुद को एक बच्चे के समान बना लो कि मुझे कुछ सीखना है। और बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि जो व्यक्ति आलोचना को, उस सुधार को खुशी से स्वीकार करता है वो बहुत ब्लेस होता है। परंतु जो व्यक्ति वो सुधरना नहीं चाहता है, वो अनुशासन को पसंद नहीं करता है और वो उसका विरोध करता है, वो मूर्खता करता है। क्योंकि परमेश्वर भी उस पर चींटी चलाता है जिसको वो प्यार करता है। हमने चर्च में देखते हैं, कई बार हमारे सेवक, हमारे पास्टर हमें डांटते हैं किसी बात को लेकर, वो हमें समझाते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, तो हमें गुस्सा आता है कि क्यों समझा रहे हैं, हम तो अपने मुताबिक चलेंगे, हमें कुछ सीखना नहीं है, हमें कुछ समझना नहीं है। कई बार हम खुद उनको सिखाना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, वो शिक्षा पसंद नहीं करते हैं, वो बोलना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो सुनना पसंद नहीं करते, वो बस बोलना पसंद करते हैं। उनको सिर्फ बोलना है और बताना है, पर सुनना नहीं है। जिस दिन आपने सुनना शुरू कर दिया उस दिन आप ब्लेस हो जाएंगे। बाइबल क्या कहती है हमें, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, जो सुधार से प्रीति रखता है, जो चाहता है कि कोई मुझे ताड़े, जो चाहता है कि कोई मुझे सिखाए, कहते हैं कि आलोचना करने वाला आपका सबसे अच्छा मित्र है। आमीन। आलोचना करने वाला व्यक्ति एक ऐसा आपकी लाइफ में वो एक ऐसा शख्स है जो रोज आपको शुद्ध करता है। आपका स्वभाव, आपकी नेचर, आपकी लाइफ, जब क्रिटिसिज्म आपको मिलता है, जब लोग आपकी आलोचना करते हैं, तो आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। आमीन। एक बारी हम लोग एक लाइव इंटरव्यू कर रहे थे और मैंने वो लाइव इंटरव्यू दी भी। तो उन दिनों के अंदर मुझे किसी ने कुछ गिफ्ट किया था। मेरी एक बहुत ही अच्छी एक
स्पिरिचुअल डॉटर थी, तो वो उसने मुझे एक रिंग गिफ्ट की थी। ऐसे ही वो घर पे आई थी और उसने वो गिफ्ट की और वो मेरे हाथ में उसने डाल दी। तो वैसे ही डली हुई थी, कोई मतलब मैंने ऐसे ही डाल के रखी हुई थी। तो हम एक इंटरव्यू कर रहे थे, वो अब मुझे पता नहीं था कि मेरा हाथ ऐसे हो रहा है। तो किसी ने मुझे वहाँ पे कमेंट किया, वो कमेंट मैंने पढ़ा, मुझे सेंड किया किसी ने, मेरे किसी खास ने मुझे वो सेंड किया। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे आपके बारे में ये कमेंट आया गया। तो मैंने जब उसको देखा तो मैंने उनको बोला, आप इस कमेंट को डिलीट मत करना, आप रहने दो इसको। मैं अपने क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के कमेंट्स कभी डिलीट नहीं करती, कोई बात नहीं, उनको करने दो। क्योंकि अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हो, देखो अगर किसी ने आपके लिए आलोचना की है, अगर तो वो आपको सुधार की रीति से आलोचना कर रहे हैं तो आप ज़रूर से प्रेम करें। अगर वो आपको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं तो वो उनका फल वो खुद पाएंगे। और बाइबल हमें क्या कहती है, यदि आप शिक्षा पाने के लिए उतावले हो, प्रीति करते हो कि प्रभु मुझे डांटे, आप धन्य हो अगर आपको परमेश्वर डांट रहे हैं। आप धन्य हो अगर आपका दास, आपका पास्टर आपको डांटता है। आप धन्य हो अगर आपको किसी बात के लिए सिखाया जाता है। आप धन्य हो क्योंकि अगर आपने प्रीति की, अगर आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा लगता है कि आपको कोई थप्पड़ मारे? आप बोलोगे क्यों थप्पड़ खाऊं मैं? लेकिन अगर वो थप्पड़ आपकी ज़िंदगी को बदल दे तो आप कितने ब्लेस्ड होंगे। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, एक लड़की थी, उसके पापा उसे बहुत प्यार करते थे। वो स्कूल में गई, उसकी टीचर ने उसे थप्पड़ मारते, वो अपने पापा को आकर बताती है, पापा मुझे टीचर ने थप्पड़ मारा। पापा उसे स्कूल से, उसकी टीचर से जाके लड़ते हैं, लड़की को स्कूल से निकाल दिया जाता है और बिना पढ़ाई लिखाई किए वो लड़की बड़ी होती है, फिर उसकी शादी हो जाती है। शादी के तुरंत बाद क्या होता है, उसका पति मर जाता है और अनपढ़ होती है तो धोखे से उसके जो रिश्तेदार होते हैं उसकी ज़मीन को, जायदाद को वो हथिया लेते हैं और उसके पास कोई चारा नहीं रहता क्योंकि वो अनपढ़ होती, पढ़ी लिखी नहीं होती है, उसको कोई नौकरी नहीं मिलती। फिर उन लोगों के घरों में बर्तन साफ करती है, एक अमीर बाप की बेटी। और एक दिन क्या होता है, वो उसकी छोटी बेटी होती है, वो अपनी बेटी को स्कूल भेजती है। तो वो स्कूल जाती है, स्कूल उसकी टीचर उसको डांटती है, थप्पड़ मारती है। तो वो आके अपनी मम्मी को बताती है, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊँगी क्योंकि टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा। उसने कहा कितने थप्पड़ मारे? उसने कहा उसने मुझे एक थप्पड़ मारा। उसकी माँ उसको 2 थप्पड़ मारती है। वो बताती है उसको कि टीचर जो है गुरु के समान है और अगर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया तो तुम्हारे भले के लिए मारा है। जाओ और जाके अपनी स्टडी करो। फिर वो लड़की स्कूल जाती है और एक दिन वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है। तो मेरे अजीजों, अगर आप ताड़ना से प्रीति करते हो, अगर आपको सुधारने के लिए कोई डांट रहा है तो आप अगर उसे एक्सेप्ट करते हो तो आप बहुत ब्लेस हो जाएंगे। इसीलिए ताड़ना करने वाले लोगों को, आपको डांटने वाले लोगों को आप उनकी रिस्पेक्ट करो, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे वो आपके टीचर हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, आपके चर्च में आपके पास्टर्स हैं। अगर वो आपको डांटते हैं, आपकी ताड़ना करते हैं और यदि परमेश्वर आपको डांटता है तो आप उसे एक्सेप्ट करो। हालेलुया। परमेश्वर भी हमें डांटते हैं, हमारी ताड़ना होती है। जब हम कोई गलती करते हैं तो परमेश्वर हमें पुनिश करते हैं और यदि वो हमें पुनिश करते हैं तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए कि प्रभु आपने ऐसा क्यों कर दिया, परमेश्वर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो हमें ताड़ रहे हैं, हमें गुस्सा कर रहे हैं, तो अगर हम ईमानदारी से उसे खलीमी से
स्वीकार करते हैं, हमें थप्पड़ पड़ा तो कोई बात नहीं, एक थप्पड़ और खा लेंगे। और अगर ऐसा सोच कर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत ब्लेस्ड होते हैं। और अगर आप घमंड करते हो कि नहीं, किसी को अधिकार नहीं है कि कोई मुझे बोल सके, किसी ਨੂੰ कोई मतलब नहीं बनता कि कोई मेरे बारे कुछ कह सके, मैं उंगली तोड़ दांगा जिहड़ी उंगली मेरे खिलाफ उठेगी, मैं वो मूँह बंद कर दियांगा जिहड़ा मूँह मेरे खिलाफ बोलेगा, तो तुसी कदी ब्लैस नहीं हो सकते। उस मूँह नूं ब्लैस करो जिहड़ा तुहाडी आलोचना करदा, जिहड़ा उस हत्थ नूं ब्लैस करो जिहड़ा तुहाडे उत्ते उंगलियां उठांदा है। जो तुसी ये करोगे तो फिर तुसी रब दी बरकत नूं हासिल करोगे। हालेलुया। और मेरे अजीजो, जे तुसी सुधरना चाहुंदे हो, अपनी जिंदगी च तुसी सुधार चाहुंदे हो, तो फिर तुसी ताड़ना नूं परमेश्वर की बरकत समझ के स्वीकार करो। आमीन। जो ताड़ना बरकत समझ के तुसी स्वीकार कर ली, फिर रब तुहानूं बहुत बरकत देगा। ते जे तुसी अपनी उस ताड़ना नूं घमंड विच आके तुसी उहनूं स्वीकार नहीं करते हो, तुसी उल्टा 10 गल्लां सुणाउंदे हो, तुसी कदे बरकत नहीं पा सकते। मैं अपने चर्च दे विच मेरे कोल 2 बच्चियां सीगियां, दोनों ने एक गलती की, सेम गलती सी दोनों की, बहुत वड्डी मिसटेक सीगी। सो दोनों की डांट हुई, ताड़ना हुई और कुछ ज़्यादा गलती कर दी उन्होंने। तो एक जी बच्ची सी बिल्कुल मेरे नज़दीक सी, उन्होंने समझाया, उन्होंने दसिया कि आ काम नहीं करना चाहिए। एक नूं सिर्फ मैं मूँह नाल दसिया, ताड़ना की, पर एक दे थप्पड़ लाइक मेरे को बच गया, मैं उहदे थप्पड़ मार दिता। सो उस तो बाद यह गल जिहड़ी सी उन्हां दी फैमिलियां तक चलेगी। दोनों फैमिलियां नूं पता लगा कि पास्टर जी ने साडे बच्चों नाल इस तरह दा बिहेवियर किया। सो दोनों के पेरेंट्स आ गए। सो जो दोनों के पेरेंट्स आए तो दोनों ही मेरे ऑफिस के विच आ गए। दोनों ने आके सवाल किए। एक पेरेंट्स जिन्हां दी बच्ची नूं सिर्फ मैं क्रिटिसाइज़ किया सीगा, उन्होंने कई तरह के घमंड विच आके कई तरह के क्वेश्चन पुट के, तुसीं कौन हो साडे बच्चे ते उंगली चुकन वाले, तुहानूं हक की बनदा, तुसीं साडे बच्चे नूं डांटिया किद्दां, तुसीं साडे बच्चे ते उंगली किद्दां चुकी, लाइक दिस काइंड ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चनस उन्होंने किए। और मैं सुन लिया और फिर मैं दूसरे नूं भी पूछा, मैं कहा जी तुसीं दसो। तो दूसरी जिहड़ी फैमिली से उन्होंने मदर और फादर से दोनों जाने, और दोनों ने आन के की किया, कहते पास्टर जी तुसीं इहदे पता लगा सानूं तुसीं एक थप्पड़ मारिया, और उन्होंने कहा जिहड़ी इहने गलती की है उहदे वास्ते एक तो बहुत थोड़ा आ, जे तुसीं इहदे 2-4 होर मार दिंदे तो ज़्यादा बैटर सीगा। और उन्होंने कहा कि असीं चाहुंदे तुसीं साडे बच्चे नूं सुधारो। ते उस जिहड़ी वो कुड़ी सी जिहदे थप्पड़ मारिया सी मैं, वो इन्ना क सुधर गई कि परमेश्वर दे विच उन्हें ग्रो किया। मैं उहदा लैवल वधदा होया देखिया, जो पहला कर नहीं सकती सी उन्हें बहुत कुछ अचीव किया उस तो बाद। हालेलुया। और जो घमंड विच सी, जिन्होंने विरोध किया उस चीज़ का, उन्हें बहुत कुछ खो दिता। उन्हें अपनी लाइफ का एक बहुत वड्डा एक जो उहदे लई रिवार्ड सीगा उन्हें अपनी जिंदगी चो खो दिता। और उहदे लई आई थिंक कि उन्होंने पछतावा होएगा आने वाले समय दे विच, क्योंकि जिहड़ा बाप तुहानूं प्यार करदा वो तुहाडे उत्ते छिटी चला सकदा, उहनूं हक है। थप्पड़ मार सकते हो, सोटी मार सकते हो तुसीं अपने बच्चे नूं टीच करने वास्ते, पर इहदा मतलब आ नहीं कि तुसीं उन्हां नूं गालां कड्डो। लेकिन अगर तुसीं बच्चे नूं प्यार करदे हो तो तुसीं अपने बच्चे नूं सिखा सकदे हो। तुसीं उस बच्चे नूं अगर वो बच्चा काबिल होएगा तो बच्चा तरक्की करेगा।
पर जो बच्चा उस ताड़ना नूं मूर्खां वांगू, वो बाइबल की दसदी है, वो पशु वर्गा, भावें ते 10 सोटे मार दो, ਉਹਨੂੰ नहीं अक्ल आनी, वो पशु वर्गा है। पर ਜਿਹੜਾ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੌਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛਿੱਟੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਗੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਬਚਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖਿਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਭਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਦੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾੜਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਥੱਪੜ ਪੈਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हालेलुया। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, यदि आप ज़्यादा दुखों से गुजरते हो तो समझ लो परमेश्वर आपको ज़्यादा प्यार करता है। कई बार मैं लोगों से बात करती हूँ और लोग मुझसे पूछते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, तो मैं उनको यही बताती हूँ कि नहीं, परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने आपको दुख ज़्यादा दिए, तकलीफ़ें ज़्यादा दी है, क्योंकि जिससे परमेश्वर ज़्यादा प्यार करता है उसको परमेश्वर ज़्यादा तकलीफ में देता है, उसको ज़्यादा परेशानियाँ देता है, क्योंकि खुदा उससे प्यार करता है। आपको वो छीटी चलाएगा, आपके ऊपर वो डंडे चलाएगा, आपको वो थप्पड़ मारेगा। मुझे थप्पड़ पड़े हैं परमेश्वर को, बहुत बारी प्रभु ने मुझे थप्पड़ मारे हैं। मैंने खाए हैं थप्पड़, इंसान से नहीं, मैंने परमेश्वर से खाए। मैंने खुद को रियलाइज़ किया, समटाइम मैंने गलती की है और मैंने पाया है कि मुझे परमेश्वर का थप्पड़ पड़ा है, और परंतु मैंने थप्पड़ खाकर मैंने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, मैंने उसको और प्रेम किया। मुझे याद है कि ट्यूशन पे मेरे पास एक लड़का था, छोटा सा था वो, उसका नाम था राजा। वो ट्यूशन मतलब मुझसे, मैं उसको ट्यूशन देती थी, और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत लाइक स्ट्रिक्ट टीचर थी, तो उसको इतने थप्पड़ पड़ते थे मुझसे, इतनी पिटाई मैंने उसकी की, इतने थप्पड़ मारे मैंने उसको, वो बहुत तंग करता था मुझे। उसे मतलब मैं उसे जो समझाने की कोशिश करती थी वो उसको कभी समझ में नहीं आता था। तो मैंने एक दिन उसकी मम्मी को कहा, मैंने कहा इसको ले जाओ, तो वो लड़का रोने लगा, कहता
जो मर्जी कर लो, आप मुझे मारो पीटो, पर मैंने आप ही से पढ़ना। तो सारे लोग हैरान थे, मम्मी उसकी हैरान, इवन मेरी फैमिली हैरान, मैं खुद हैरान। मैंने कहा ये मैंने तू थप्पड़ मारा है, तू तेरे को मुझ पे गुस्सा नहीं आता, तुझे जाना चाहिए। वो कहता नहीं, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, तुम ही पढ़ाओ मुझे नहीं जाना कहीं पे, मुझे नहीं जाना तुम्हें छोड़कर। तो मुझे उससे बहुत प्यार हो गया उसके बाद। फिर मैंने उसको बड़े समझा कर फिर मैं जो मैं कर सकती थी उसके लिए मैंने कर दिया। और एक ऐसा भी स्टूडेंट था मेरे पास जो 8th क्लास में था, पर उसको कुछ पढ़ना ही नहीं आता था, उसको भी मैंने पढ़ाया। और उस बच्चे को मैंने उस लेवल पे ले गई कि वो सब कुछ रीड करने लगा। कि ये मेरी खासियत थी, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा अगुआ। और अब खुदा ने मुझे अगुआ बनाया है। और मेरी डिज़ायर क्या है कि मेरे साथ जुड़े हुए लोग परमेश्वर के राज्य में ज़रूर प्रवेश करें। आमीन। और इस जतन में मैं लगी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये संसार खत्म हो जाएगा क्षण भर में। एक और परमेश्वर हमारे लिए एक और उम्मीद है, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग है, हमें वहाँ तक जाना है। क्या हम रेडी हैं वहाँ जाने के लिए? अगर अब आप देख रहे हो कि उसके आने की तैयारियां हो चुकी हैं, तो क्या मैं और आप रेडी हैं? अगर आज प्रभु आ जाए तो क्या आप रेडी हो? क्या अपने दिल पे हाथ रख के खुद से पूछो, आपको लगता है कि आप स्वर्ग में जाओगे? क्या बपतिस्म लेने से, नाम के पीछे मसीह लगाने से क्या स्वर्ग का राज्य खुल जाएगा? आपके लिए दरवाज़ा खुल गया? दिल पे हाथ रख के खुद से पूछ के देखो। कभी खुद को आईने में देखो और खुद से पूछो कि क्या अगर उसकी सेकंड कमिंग हो गई तो क्या मैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाऊंगा? शायद आपको जवाब अंदर से मिले, नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप खुद आपको पता है। इसलिए मैं आज बोलती हूँ, ताड़ना से प्यार करो। वो जो डांट रहा है उसको ईमानदारी से स्वीकार करो, ऑनेस्टली। हाँ प्रभु मैं गलत हूँ, यहाँ पे घमंड भरी सोच मत रखो। अगर कोई आपको सिखाता है, अगर आपको कोई उंगली पकड़ के कोई सही रास्ता बताने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर गुस्सा मत करो, बल्कि उसे समझो। क्योंकि जो आपको वो सिखा रहे हैं वो आपके भले के लिए है और आप ब्लेस होंगे। आमीन। सो मेरे अजीजों, बाइबल हमें क्या कहती है? जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वे ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से वैर रखता है वो पशु के समान है। और पंजाबी दी बाइबल च की लिखा, जो सुधार नाल प्रीत रखदा वो ज्ञान नाल प्रीत रखता है, पर जो ताड़ना नूं बुरा जानदा वो पशु दे वर्गा है। हालेलुया। ते अज मैं तुहानूं दस्सां, कई वारी सानूं सारिआं नूं ताड़ना ते झिड़क दी लोड़ हुंदी है। आमीन। हर एक व्यक्ति नूं, मैनूं भी ते तुहानूं भी, आपां नूं सारिआं नूं किते किते ताड़ना दी लोड़ हुंदी, झिड़क दी लोड़ हुंदी है। ते जदों रब सानूं झिड़कदा है ते सानूं खुशी नाल उहनूं स्वीकार करना चाहिदा, ना कि परमेश्वर नूं संभाल करनी चाहिदी, ना कि परमेश्वर दे उत्ते गुस्सा करना चाहिदा, बल्कि खुशी नाल। थैंक यू प्रभु जी, तुसीं मैनूं ताड़िया। तुहाडा धन्नवाद, तुसीं मैनूं थप्पड़ मारिया। धन्नवाद परमेश्वर, तुसीं मैनूं अज जिहड़ी ताड़ना दित्ती है, मैं प्रभु जी सुधरना चाहुंदा है, मैनूं सुधारो किसी भी तरीके नाल। ते जदों मैं वो लड़की जिहड़ी सीगी जिहदे थप्पड़ पिया सीगा, मैं उहनूं पुछया कि लाइक मैं तैनूं थप्पड़ मारिया, ते मैं ਉਹਦਾ रिएक्शन पूछया, तो उन्हें की किया, उन्हें कहा तुसी चाहे मैनू जो मर्जी मारो, ਉਹਦੇ पापा ने कहा, उसकी मदर ने कहा कि तुसी बस इनू सुधार जो। तो उन्हें खुद ने भी कहा कि तुसी मैनू सुधार दो, मैनू पता है कि मैं गलत हाँ, तो तुहाडा जिहड़ा थप्पड़ है, तुहाडी जिहड़ी डांट आ,
वो मेरे लिए बरकत है। आमीन। ते अज तुहाडे लिए भी परमेश्वर की डांट एक बरकत है। एक होर तुहानूं मैं परमेश्वर की गवाही दसना चाहूँगी ताड़ना दे उत्ते ही। मैं सराय खास दे विच एक मीटिंग कर रही सी ते मीटिंग तो बाद मीटिंग खत्म हो गई, असी जा रहे सीगे और एक मेरी टीम मैंबर सीगी, मैं उन्होंने क्या काफ़ी दूर एक सिस्टर सीगे गेट वाल आ रहे सीगे ते मैं अपनी गड्डी वाल जा रही सी और होली स्पिरिट ने कहा कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करा और मैं उन्होंने दसिया कि तू ਉਹਦੇ पिछे जाके खड़ी हो जा क्योंकि वो गिरेगी। लाइक उन्होंने 2-3 बारी मैं इशारा किया, उन्होंने नहीं समझ लगी। उस तो बाद फिर मैं उन्होंने बोलिया कि तू जाके उन्होंने पिछे पकड़, लेकिन जदों तक वो उत्थे पहुंची लाइक वो स्पीड इन्नी स्लो सी, जदों तक वो पहुंचे उदों तक फायर उहदे तक उहदे तो पहले ही फायर उत्थे पहुंच गया तो वो लेडीज़ डिग गई। जदों लेडीज़ गिर गई तो लाइक मैनूं बहुत बुरा लगा। सो मैं लाइक वो मेरे कोल आई, उन्होंने मैं दसिया कि मैं तेनों कहा सी तू उत्थे पहुंची नहीं। तो मैं लाइक ऐदा ही करते करते लाइक उन्होंने समझाते इस तरह मैं वो एक लगा दी कि तेनों समझना चाहिए सी। सो जिदा ही वो एक मैं लगाई तो उन्हें लाइक उत्थे शोर मचाना शुरू करता उन्हें कहती थैंक यू जीसस मैं सोचा की हुआ मैं है क्यों होया तेनों। तो उन्हें क्या कहती पास्टर एक मिनट सुनो मेरी एक टेस्टमनी सुनो। तो मैं क्या कि लाइक बड़ी हैरानी वाली गल सी कि उन्हें दसिया कि पिछले घट्टो घट्ट नहीं 2 हफ्ते तो उन्हें कहना मेरे बैक दे विच पेन सी और मैं दसिया नहीं किसी नूं और बैक पेन होने दे करके मैं तो दौड़िया नहीं गया। तो मैं स्लो उस लेडीज़ तक पहुंची तो वो डिग गई। तो जदों तुसी मेरी ताड़ना की, मैनू डांटिया, मैनू समझाया और तुसी एक मेरे लगाई एक जदों मतलब कि मैनू समझाते हुए वैसे मैं प्यार नाल ही लगाई उहदे तो उन्हें की कहा कहती कि जो तुसी मैं एकदम मैंने लगाई तो मेरी जी कमर की दर्द सी उस टाइम निकल गई और मैं हील हो गई। हालेलुया। और उस तो बाद उन्हें अपनी टेस्टमनी दी। तो मैं उन्होंने पूछा मैं कहा हुण तू चर्च में अपनी गवाही कितना दूंगी कि पास्टर जी ने मेरे थप्पड़ लगाया और मेरी कमर की दर्द चली गई तो ये बोलोगी तू। तो कहते नहीं मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करूँगी कि मुझे परमेश्वर ने डांटा, मुझे ताड़ना मिली और जैसे ही मुझे ताड़ना मिली तुरंत मैं चंगी हो गई। आमीन। आपने सुना मुझे ये ताड़ना जो है, ये डांट जो कि हमारे माँ बाप भी हमें ताड़ते हैं। मुझे याद है मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे ABC नहीं आती थी। मेरे पापा प्रिंसिपल थे और पापा में टीच करवाते थे और मुझे बिल्कुल नहीं आता था पढ़ाई, बहुत नालायक थी। फिर एक दिन मेरे पापा ने पहले मुझे प्यार से समझाया 2 बारी 3 बारी 4 बारी 5 बारी। पापा ने पूछा तुझे पता है ये ऐसे है ऐसे है ऐसे हैं। मेरे को समझ में नहीं पड़ी। फिर पापा ने एक दिन मेरी वो पिटाई की, इतनी पिटाई की मैंने, उस दिन से लेके आज तक मुझे कुछ नहीं भूला और मैंने इतने मार्क्स लेने शुरू कर दिए। मैं अब भी बड़ी होकर भी इतनी बड़ी होकर आज भी मैं अपने फादर के लिए थैंक्स बोलती हूँ कि अगर उस टाइम पे पापा ने मुझे वो मेरी पिटाई ना होती तो मैं आज यहाँ पर ना होती। जब मैं एक फॉरेन में जाती हूँ तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती यहाँ पे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। तो ये ब्लेसिंग पापा की तरफ से फादर ने दी। तो मैं उस टाइम पे याद करती हूँ अगर फादर ने ना सिखाया होता मुझे तो आज मुझे आज काम आ रही है उनकी डांट। आपको टाइम बीत जाएगा, आपको माँ बाप की डांट याद आएगी, आपको माँ बाप के थप्पड़ याद आएंगे, आपको याद आएगा कि कोई हमें सिखाता था, आपको याद आएगा कि कोई हमारा हाथ पकड़ के हमें सही रास्ता दिखाता था। और अगर आप प्रीत करेंगे उससे तो आप बढ़ते जाएंगे। आमीन। और अगर आप घमंड में आएंगे, तू कौन होता मुझे डांटने वाला, तू
तू क्या, तेरा मतलब क्या बनता है? अगर हम ऐसे सवाल जवाब करेंगे तो हम कभी ब्लेस नहीं होंगे। मूर्ख मत बनो। और ऐसे ही परमेश्वर है, जैसे मेरे पापा ने मुझे डांटा, ऐसे परमेश्वर हमें डांटते हैं। वो हमारे भलाई के लिए हमें थप्पड़ मारते हैं, वो हमारी भलाई के लिए हमें दुख देते हैं, वो हमें समझाने के लिए सब कुछ करते हैं। तुम अपने पिता से गुस्से क्यों होते हो? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। क्यों? मुझे डांट पड़ी, मुझे बीमारी आ गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे ये बीमारी लग गई, मेरा फाइनेंस का नुकसान हो गया, मैं अब परमेश्वर को छोड़ दूंगा। क्यों? अगर कोई दुख आया है आपके ऊपर, वो आपकी कमी के कारण है, वो आपकी गलती के कारण है। आपने कुछ गलत किया था और वो ताड़ना रूपी थप्पड़ जब आपको पड़ा तो उसको हैप्पीली रिसीव करो, उस उसको परमेश्वर का धन्यवाद करो। आप ब्लेस होंगे। आमीन। आई बिलीव कि आज का वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। और इस अब से आपको अगर कोई डांटेगा और यहाँ तक कि अगर आपकी कोई आलोचना करेगा तो आप उसे प्रेम से स्वीकार करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। मैं अपने सारे जो मेरे क्रिटिक्स हैं, मैं ऑलवेज उनको थैंक्स करती हूँ कि प्रभु ने बहुत ब्लेस करे, और उनका धन्यवाद करना चाहिए। अगर प्रभु डांटे तो उसको प्रेम करो। हालेलुया। और जब आप उसको प्रेम करोगे आप ब्लेस होते जाएंगे। आमीन। सो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु आपको ब्लेस करें। मैंने कई बार आपको बताया कि नेटवर्क हमारे घर में बहुत स्लो चलता है, तो प्रभु ने चाहा तो जल्दी ये समस्या हल होगी। सो अभी जी आप अपनी प्रॉब्लम टाइप करिए, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी और बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। आमीन। सो आइए दुआ करते हैं। अपनी प्रॉब्लम टाइप कर सकते हो। कविता, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत ब्लेस करें। सो ये दुआ में चले। हरे खेरा बाशो कोंदा बातारा रिखाना ना बासा खाना बातारा रिखेने बेबे समय तेरे रिकोनो नो बोशो कोंदारा रिखाना ना का बाबा। हालेलुया। तारीफो रिखेने बेशकारा बाबा। सीमेंदे रे रिखाना ना बाशो कोंदा बातारा रिखेने ने बेसखारा हाथों लोको तोरा पापा। पिता परमेश्वर, मैं तेरी प्रेजेंस में तेरे लोगों को लेकर आती हूँ। पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर जी, इनके जीवन के अंदर प्रभु अपना अद्भुत रीति के साथ अपना हाथ बढ़ाकर इनको छूना शुरू करे खुदा। और परमेश्वर, मैं आज आपके लोगों की प्रार्थनाओं को, परमेश्वर इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें आपके पवित्र और पाक हाथों में देती हूँ। पिता परमेश्वर जी, दृढ़ी कराना बाबा, शिकाना नी कराना कांदरा नी कराना कांदरे नी कराना का बाबा। हतोरो रे केने नी कराना बाबा, शकुंदरा नी कराना का बाबा। ओ रे के ना बसा कांदरा नी कराना खा शकुंदरा रे केरे रे बेबे। जीसस तड़ा धन्यवाद। सो सब तो पहला मैं प्रार्थना करूँगी जिन्हें भी बीमार ने प्रभु यीशु मसीह दी हजूरी दे विच प्रभु तुहानू छुए और परमेश्वर तुहानू ब्लेस करे। इस टाइम प्रभु जी मैं चाहती हाँ पिता परमेश्वर जी, पिता तुहाडा सामर्थ्य हाथ तुहाडे लोकां दे उत्ते आवे पिता परमेश्वर जी। और अज जिन्हें भी पिता परमेश्वर मैनू बीमार देख रहे ने खुदावंद, मैं चाहती आत्मा दे विच परमेश्वर तुसीं एक एक नू छू के चंगा कर दो प्रभु। जिन्हें कैंसर के पेशेंट्स ने प्रभु जिन्होंने छुओ तो अपनी सामर्थ के द्वारा प्रभु जी अपने लोगों को चंगा करो पिता परमेश्वर जी। और जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट ने तुहाडी सामर्थ तुहाडे लोगों ते उतरे, जिन्होंने लीवर के विच प्रॉब्लम है, किडनियां दे विच प्रॉब्लम है, परमेश्वर तुहाडा आत्मा एक एक नू छू के चंगा करे। खास करके पिता बैक दे विच जिन्हां दे पेन है, घुटनियां च दर्द है, कन्नां विच दर्द है, अखां विच इन्फेक्शन, पेट दियां जिन्नियां भी परमेश्वर बीमारियां दे नाल पीड़ित तेरे लोग ने परमेश्वर, अज मैं उन्होंने तेरे लहू दे विच कवर कर देनी खुदा।
तेरा आत्मा तेरे लोगों ਨੂੰ छू के चंगा कर दे पिता परमेश्वर। मैं स्पैशली प्रार्थना करदी हाँ पिता परमेश्वर ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਬੋਝ ਬਰਡਨ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਲੱਡ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅੱਜ ਖੁਦਾਮ। खास करके मैं दुआ करती हाँ पिता जिन्हों के कोल परमेश्वर जी बच्चों का वरदान नहीं, अज परमेश्वर अपना स्वर्ग खोल के अपने लोगों को बच्चों की आशीष दे मेरे खुदावंद। मैं परमेश्वर यहोवा तेरे लोगों के उत्ते तेरा किरपा वाला हथ मंगदी हाँ पिता परमेश्वर जी, जिन्होंने भैनों दी कुखां बंद ने यसू के नाम दे विच कुखां खुल जाण अज तेरे नाम दे विच पिता परमेश्वर जी। स्पैशली मैं प्रार्थना करती हाँ पिता परमेश्वर जी जिहड़े भी अज अपनी प्रार्थनावां परमेश्वर अपनी रिक्वेस्ट अज परमेश्वर तेरे चरणों के विच रख रहे हैं पिता परमेश्वर जी। अज पिता परमेश्वर जी तेरी सामर तेरे लोगों के जीवन के विच काम करे पिता, जिन्होंने भैनों के यूटरस के विच रसौलियां ने पत्थरियां ने प्रभु जी, अज यसू के नाम के विच सारियां पत्थरियां रसौलियां जांदियां रहन पिता परमेश्वर जी। और जिन्हों के लीवर के विच परमेश्वर किसी भी तरह का कोई इन्फैक्शन है बीमारी है, तुहाडे नाम के विच परमेश्वर तुहाडे लोग चंगे हो जाण खुदावंद। मैं दुआ करदी हां पिता परमेश्वर जी अज पिता परमेश्वर जी तुसी एक एक दी प्रार्थना नूं सुन के उत्तर दिओ पिता परमेश्वर, तुहाडा जोर ते तुहाडा परमेश्वर पवित्र मसा तुहाडे लोकां दे अंदर काम करे पिता परमेश्वर जी। खुदावंद तुसी अज अपने लोगों को प्रभु अपनी सामर्थ के द्वारा ब्लैस कर दो प्रभु जी। हर एक की प्रार्थना अज मैं तुहाडे चरणों के विच लैके आउणी जो डैवल पावर के द्वारा अफेक्टेड ने प्रभु, अज शैतान दी ताकतां उन्हां जीवनां नूं छड्ड के चलियां जाण, जिन्हां घरां विच परिवारां दे विच लड़ाई झगड़े ने दुष्ट दीआं ताकतां प्रभु जिन्हां परिवारां दे विच काम करदियां प्रभु जी, अज तेरे सामर्थी ते पाक नाम दे विच दुष्ट दीआं सारियां ताकतां जांदियां रहन पिता परमेश्वर जी। तुहाडे लोकां दे उत्ते प्रभु मैं तुहाडे पवित्र लहू नूं परमेश्वर अज मैं ब्लैस कर देनी पिता परमेश्वर जी। और जेड़े भी परमेश्वर तेरे दास प्रभु तेरी सेवा करने वाले तेरे सेवक अज मेरे नाल लाइव जुड़े हैं, उन्हां दी मिनिस्ट्रियां नूं सेवकाइयां नूं उन्हां दे चर्चां नूं अज मैं तेरे लहू दे विच ब्लैस कर देनी पिता परमेश्वर जी। और मैनूं परमेश्वर आत्मा दस रिहा परमेश्वर दे दासां नूं बोलण वास्ते कि तुसीं डरो ना घबराओ ना, तुहानूं परमेश्वर बहुत दुगनी ब्लैसिंग दे नाल भरन जा रहा, ते जिस तरह ये लॉकडाउन ओपन होएगा तुसीं परमेश्वर दे जो काम परमेश्वर ने पहला किया ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी डबल और ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी दुगनी तेजी ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर काम करन जा रहा। सो मैं स्पैशली अज प्रार्थना करूँगी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मिल के, मैं चाहूँगी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ जने मेरे ਨਾਲ मिल के दुआ करो। दुआ करांगे कोरोना वायरस ਦੇ ਲਈ परमेश्वर ਦੇ के रिक्वेस्ट करांगे कि परमेश्वर दया करे इस दुनिया के उत्ते जगत के उत्ते संसार के उत्ते हर देश के उत्ते हर कौम के उत्ते प्रभु जी, हर जाति के उत्ते मानव जाति के उत्ते परमेश्वर तुसी किरपा कर दो प्रभु जी। इस वायरस नूं परमेश्वर जी तुसी अपने हत्थां दे विच लै लो परमेश्वर यहोवा, ये वायरस तुसी ही परमेश्वर कंट्रोल दे विच करन दी ताकत रखदे हो, उहनूं तुसी खत्म कर सकदे हो पिता। ते असीं चाहुंदे हां परमेश्वर कि इस धरती दे विच परमेश्वर इन्हां मनुष्यां नूं दोबारा एक होर मौका दिता जाए पिता परमेश्वर जी, ताकि पिता परमेश्वर जी जिन्हां ने तोबा नहीं की प्रभु तोबा कर लैण पिता परमेश्वर जी। ते खुदावंदा तुसीं इस वायरस नूं अपने कंट्रोल दे विच कर लो परमेश्वर। हर एक शहर दे विच हर एक नगर दे विच तुहाडे स्वर्गीय दूत जाण पिता परमेश्वर, तुहाडी प्रोटैक्शन तुहाडे लोकां नूं मिले। ते जिन्ने भी हॉस्पिटल दे विच बीमार ने प्रभु इस टाइम जोड़े कोरोना के पेशेंट्स ने उन्होंने उत्ते परमेश्वर मैं तेरा लहू लुकानी, उन्होंने किरपा रहम ते फजल दे नाल भर दे, ते परमेश्वर तेरे लहू दे द्वारा परमेश्वर वो चंगे हो जाण किताब परमेश्वर जी। जोड़ा स्टाफ उत्ते काम करे डॉक्टर्स और नर्सिस परमेश्वर और जो भी मैडिसन प्रभु उत्थे उन्होंने दिती जा रही है प्रभु जी, वो मैडिसन परमेश्वर जी डॉक्टर नहीं जानते परमेश्वर क्यों कि मैडिसन है जिस कोरोना पेशेंट चंगे होण। मैं चाहती जिहड़ी भी मैडिसन उन्होंने दे रहे हैं डॉक्टर्स वो मैडिसन तेरा लहू बन जाए, तो जिदा ही प्रभु कोरोना पेशेंट्स उन्होंने लैण ते प्रभु तेरे नाम दे विच चंगे हो जाण खुदावंद पिता परमेश्वर जी। तुसीं अपना लहू अपने लोगों ते लखाओ बहाओ पिता परमेश्वर जी। ते पिता परमेश्वर जी एक एक डॉक्टर नूं एक एक नर्स नूं परमेश्वर अपने कंट्रोल च कर लो, ते कोरोना दे प्रभु जी अफेक्ट तो हर एक नूं बचाओ परमेश्वर। स्पैशली पिता जिथे बहुत ज़्यादा परमेश्वर जी कोरोना का कहर वरस रहा प्रभु उन्होंने कंट्रियां दे विच प्रभु अपने डिवाइन हैल्पर भेजते प्रभु। अगर उन्होंने कोई पाप किए ने प्रभु वो पाप तू क्षमा कर परमेश्वर, ते मानव जाति ते रहम कर, ते उन्होंने लोगों को बचा पिता परमेश्वर जी, उन्होंने छुटकारा दे पिता परमेश्वर जी।
ਉਹ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਭੇਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਭੇਜੋ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੌਜਵਾਨ ਯੰਗਸਟਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਗਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾੜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਗੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਡਰੋ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਦਭੁਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਲੈਸਡ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਰਹੂੰਗੀ ਜਲਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਜ਼ਬੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।